Good morning, ma'am. So we were doing functions of several variables and we studied the definition of limit of a function. So let us just revise the definition. It was that if limit fx as x tending to x0, this is equal to suppose L, तो क्या होता था इसका मतलब, for every epsilon positive there exists delta positive depending upon epsilon such that mod of fx minus L is less than epsilon whenever norm of x minus x0 is less than delta. We all know the value of norm and the value of delta depends upon epsilon. So now let us come to some questions on this. Right, using delta epsilon approach, show that limit xy tends to 1, 3x plus 4y is equal to 10. So here our fx is 3x plus 4y. Now the limit is 10. Now we have to find out the mod of fx minus L. So L is 10. So this is mod of 3x plus 4y minus 10. So इसकी वैल्यू when less than epsilon होगी. Now you see here x is tending to 2 and y is tending to 1. So we will write this expression in terms of x minus 1 and x minus 2 and y minus 1. Because when you calculate the norm of xy minus 2 1, so ये क्या आएगा, this will be under root of x minus 2 whole square plus y minus 1 whole square, ये आएगा ठीक. So now this is less than we have to assume that this should be this for every epsilon positive there exists delta such that this is less than delta. Now when will be this will be less than delta? When x minus 2 is less than some value less than delta and y minus 1 is less than some value which is less than delta. So we will write this expression in terms of x minus 2 and y minus 1. So let us factorize this. तो ये क्या आएगा, 3 times x minus 2 plus 4 times y minus 1, ये आ जाएगा. Now this is less than equal to 3 times x minus 2 का mod plus 4 times y minus 1 का mod. Now this is equal to 3 times mod of x minus 2 plus 4 times mod of y minus 1. Now if you take mod of x minus 2 less than delta and mod of y minus 1 less than delta, then we have
mod of fxy minus 10, वो क्या हो जाएगा? This will be less than, यहाँ से देखो 3 delta plus 4 delta, which is 7 delta, and this should be less than epsilon. So what is the value of delta from here? Epsilon by 7. Delta is less than epsilon by 7. So we get a delta depending upon epsilon. Okay? So hence, for every epsilon positive, there exists delta less than epsilon by 7, such that mod of 3x plus 4y minus 10 is less than epsilon whenever delta is less than epsilon by 7. Thus, limit xy tends to 1, 3x plus 4y is equal to 10. Clear, everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम लास्ट स्टेप 10 के बाद जो क्वेश्चन था वही लिखा है, लिमिट xy tends to 1, 3x plus 4y is equal to 10. Now coming to one more question. You have to show that limit xy tends to 1, 1, x square plus 2y, this is equal to 3. So you calculate the mod of fxy minus 3. So what is fxy here? We'll write it directly. X square minus plus 2y minus 3. Now we have to write this term in the form of x minus 1 and y minus 1. So this is whole square banao. So this is x minus 1, x square is plus 1 whole square plus 2 times y minus 1 plus 1 whole square minus 3. So this is equal to x minus 1 whole square plus 2 times मैम वहाँ y x में minus होल स्क्वायर नहीं होगा। स्क्वायर अच्छा स्क्वायर नहीं है वो, Y पर ठीक, प्लस 2 टाइम्स x माइनस 1 ये बचा प्लस 2 टाइम्स y माइनस 1, ठीक। mod, so this is less than equal to क्या आया, mod of x minus 1 whole square plus 2 times mod of x minus 1 plus 2 times mod of y minus 1. Now if you take mod of x minus 1 less than delta and mod of y minus 1 less than delta, तो हमें क्या मिलेगा, then mod of x square plus 2y minus 3, this is less than delta square plus 2 delta plus 2 delta. Now this should be less than epsilon. ये कब होगा, if delta plus 2 whole square, here you get delta square plus 4 delta. So this is, you have to find delta in terms of epsilon. So I am making whole square here, so we add 4 here. So or delta is less than under root of epsilon plus 4
-2. So हमें क्या मिला? 10 for every epsilon positive there exists delta. This is delta. Less than epsilon plus 4 minus 2 such that mod of x square plus 2y minus 3 is less than epsilon whenever delta is less than epsilon plus 4 minus 2. अरे यहाँ पे तो आप वो लिखोगे ना, whenever norm of xy minus 1 1 is less than delta. ऊपर वाले में भी सही कर लेना. जी यहाँ पे क्या था? नॉर्म ऑफ एक्स वाई. तो अगर हम लोग डायरेक्टली नॉर्म ऑफ लिख दें तो अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना. क्या था? एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इज लेस देन डेल्टा. ये क्या है? x minus 1 whole square plus y minus 1 whole square is less than delta. So hence, हाँ इसका फर्स्ट स्टेप थोड़ा समझ में नहीं आया. इसका फर्स्ट स्टेप इस क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप कौन सा? स्टार्टिंग में जो x माइनस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर जो आपने ली. This is all we are doing because we have to write ये ना, x is tending to 1 and y is tending to 1 also. So we have to write this term, this term fxy minus l in terms of x minus 1 and y minus 1. So now you arrange this term in terms of x minus 1 and y minus 1. Ma'am, that x square plus 2y minus 3 mod equal to x minus 1 plus 1 का होल स्क्वायर. ये समझ में नहीं आया. नीचे में वो तो प्लस 1 माइनस 1 तो कट जाएगा ना फिर. अरे तो उसको अलग नहीं करोगे. x माइनस 1 एक ब्रैकेट में है. Okay. x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2xy ये हुआ. मैम इसको ऐसे कैसे लिख दिया? x माइनस 1 वो समझ में आ गया मैम. ये x माइनस 1 प्लस 1 ये कैसे हो गया? ये ऐसे हो गया क्योंकि हमको x को x माइनस 1 के फॉर्म में लिखना है. तो x को अगर x माइनस 1 के फॉर्म में लिखोगे तो या तो x स्क्वायर है तो प्लस 1 नहीं करोगे. या मैम आई क्लियर हो गया मैम. ओके थैंक यू. और एनी क्वेश्चन? आगे बढ़े. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ओके उसके पहले हम लोग एक नोट लिख लेते हैं. ना हमने देखा था कि इफ द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट मींस हम लोग अभी R2 में देख रहे हैं. तो इस पॉइंट की लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है तो इफ वी अप्रोच दिस पॉइंट थ्रू एनी पाथ, किसी भी पाथ से आप इस पॉइंट पे आओ, दिस कैन बी अ कर्व और अ सर्किल एंड और एनी पाथ.
किसी भी पाथ से आप आओ, so the limit should be same if you approach this point through any path. So now it is very difficult to test that because there are infinite number of paths passing through a point, so or infinite number of curves passing through a point, so you cannot check for each and every curve. So therefore we have, if the limit exists, then we have the formula, delta epsilon formula definition to check for the existence of the limit. But if the limit does not exist, then we can say that there exists a path at which the limit of the function is not does not exist. ठीक, so through any path, so suppose there exists a line such that the limit of the function depends upon the slope of the line, then we can change the slope of the line and the limit of the function can change. So if we have to show that the limit of a function does not exist, then the method is that we show that the limit is dependent upon the slope of the line. There exists a line such that the limit is dependent upon the slope of that line. So if we change the slope of the line, then the limit is also changing. But we know that if it exists, then it should be same to any path from via which we are approaching that point. So if it is dependent upon the slope of the line, then it will change as the slope of the line changes. So there is a simpler method to show that the limit does not exist is that we will show that it is dependent upon the slope of the line. ठीक, so you write a note, limit does not exist if it is infinite, या तो वो infinite हो जाए, or if it depends upon a particular path. A particular path. ठीक, अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना, कई बच्चे कंप्लेन करते हैं कि बुक में दिया हुआ है कि अगर लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही है तब तो हम पाथ डिपेंडेंट है वो ये दिखा के कर सकते हैं कि वो लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन कई बार वो लोग पता नहीं कहाँ से पढ़ लेते हैं कि हम ये दिखा, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो भी हम y इज इक्वल टू एम एक्स लेके और दिखा दें कि लिमिट जो है वो m पे डिपेंडेंट नहीं है, देयरफॉर वो एग्जिस्ट कर रही है। तो ये मेथड गलत है, ये आप नहीं यूज करोगे। क्यों? क्योंकि खाली एक, अगर मान लो 0 0 की बात कर रहे हैं तो खाली एक y इज इक्वल टू एम एक्स ही एक पाथ नहीं है जो 0 0 से पास कर रहा हो। 0 0 से पास करने वाले बहुत सारे पाथ्स हैं, पैराबोला है, हाइपरबोला है, इलिप्स है, स्फीयर है, सर्किल है, एलिप्सॉइड है, और भी बहुत सारे पाथ्स हैं जो कि जिनके की नाम भी आपने नहीं पढ़े होंगे, आगे जाके पढ़ोगे, कैटनरी है, और भी बहुत सारे पाथ्स हैं। तो वो सारे पाथ्स आप नहीं चेक कर रहे हो, तो खाली एक लाइन से चेक करके आप ये नहीं कहोगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। इस बात का ध्यान रखना, ये नॉट एग्जिस्टेंस का मेथड है पर एग्जिस्टिंग का मेथड ये नहीं है। तो इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। How we will able to tell that the limit of the path exists? अभी देख रहे हैं, हाँ अभी देख रहे हैं ना। शो दैट दिस लिमिट कैसे एग्जिस्ट करेगी, उसके लिए तो आपके पास सिर्फ एक ही मेथड है, एप्सिलॉन डेल्टा का, वैसे ही दिखाओगे। 0 0 xy अपॉन
x square plus y square does not exist. Now you have to show that this does not exist. So how to show this? We'll show that this is path dependent. Now xy is approaching 0, 0. So we take a line passing through 0, 0. So consider the path y is equal to mx. So now you put y is equal to mx in this limit. So limit xy tends to 0, 0. ये क्या हो जाएगा? x into mx upon x square plus mx whole square. तो ये क्या आ गया? as xy tends to 0, 0, this will be 1 upon 1 plus m square. Now this is dependent upon the path m. So as m by m होगा ऊपर. हाँ m होगा, चलो ठीक. So this is dependent upon the path. As the value of m changes, the limit also changes. So if the limit is changing as the path is changing, then we say that the limit does not exist. It should be same on each and every path. So it is not same as the value of m is changing. So this is path dependent. ठीक. thus m के इंडिपेंडेंट आनी चाहिए थी अगर एग्जिस्ट करती. नहीं, वही तो कह रहे हैं कि ये टेस्ट नहीं होगा. अगर मान लो यहाँ पे n के इंडिपेंडेंट आ भी जाती तो भी आपने खाली y इज इक्वल टू mx पे चेक किया है. इस 0, 0 से भी इसे पास करने वाला सर्किल भी बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइट. स्फीयर भी बहुत सारे होंगे, इलिप्सॉइड होंगे, कैटेनरी होगी, है, और भी पैराबोला होंगे, हाइपरबोला होंगे, और भी बहुत सारे पाथ्स होंगे. उनके अलोंग तो आपने चेक नहीं किया. यस मैम. ठीक. तो अगर इंडिपेंडेंट भी आ जाती तो भी आप ये नहीं कह सकते थे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है. क्यों? क्योंकि आप खाली एक पाथ के अलाउंड सिर्फ इस पॉइंट्स पे जितनी लाइंस पास कर रही हैं सिर्फ उन पे चेक कर रहे हो, बाकी कर्व पे चेक नहीं कर रहे हो. ठीक. पर ये मेथड लिमिट नॉट एग्जिस्ट करने का हो सकता है. क्यों? क्योंकि लिमिट अगर नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो कोई एक पाथ मिलेगा जिसपे कोई 2 पाथ मिल जाए जिन पे लिमिट अलग अलग आ जाए. मान लो एक पाथ ये मिल गया, इस पे लिमिट दूसरी आ गई, एक पाथ ये मिल गया जिस पे लिमिट दूसरी आ गई. ठीक. तो लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगी, बिकॉज कोई भी पाथ हो लिमिट सेम होनी चाहिए. तो हम ये दिखा दें कि ये जो लिमिट है ये डिपेंडेंट अपॉन द स्लोप ऑफ द लाइन है, लाइन पासिंग थ्रू दैट पॉइंट जिस पे कन्वर्ज करना है. ठीक. तो अगर डिपेंडेंट हाँ मैम, अगर ये जो लीनियर आपने फंक्शन बना रखा है, अगर हम यहाँ पे रखते साथ ये यम पे डिपेंडेंट नहीं आती तो क्या हम अगला कर्व रख के फिर चेक करते हैं? एक बार नहीं करते, बोल तो रहे हैं, वो आप कर ही नहीं सकते. इनफाइनाइट नंबर ऑफ कर्व्स है, आप नहीं कर सकते हो. तो अगर नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो इसके लिए आपके पास सिर्फ एक ही मेथड है. वो क्या है? एप्सिलॉन डेल्टा से चेक करोगे. अगर नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो वो आपको जैसे ये क्वेश्चन देखो, इसी से क्लियर है कि ये पाथ डिपेंडेंट आएगा. हाँ, x की वैल्यूज कट जाएंगी. अगर y को आप x के टर्म्स में लिखोगे तो x की वैल्यूज तो कट जाएंगी और बचेगा m बचेगा यहाँ पे. तो दिस विल बी पाथ डिपेंडेंट. तो आपको जितने भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे मैक्सिमम वो लाइन से सॉल्व हो जाएंगे. लाइन पासिंग थ्रू दैट पॉइंट लोगे, उससे सॉल्व हो जाएंगे. डिपेंडेंट अपॉन पाथ आ जाएगा मैक्सिमम. मैम ये 0, 0 देने का क्या मतलब हुआ? x y 0, 0 देने, अगर x y 0, 0 को 10 कर रहा है तभी तो लाइन पासिंग थ्रू 0, 0 ली तुमने. ओरिजिन. अच्छा. तो 1 1 होता है. अगर x y किसी पॉइंट 1 1 होता तो लाइन पासिंग थ्रू 1 1 निकालते. ओके मैम if we find
m तो होमोजेनियस इक्वेशन इसलिए x कट गया, लेकिन किसी और जगह तो m और x डिपेंडेंट रहेंगे ना फिर। तब फिर इस मेथड से नहीं कह सकते हो। मैम if we तब find इसलिए तो लिमिट नॉट एग्जिस्ट करने का ये मेथड है। तो मैं हमें और हो सकता है कोई दूसरा कर्व लेना पड़े, हो सकता है हमें कोई दूसरा कर्व लेना पड़े जिससे कि जो x की वैल्यूज है वो कट जाए। That depends upon the question. Ma'am, if we find limit independent of m, then we will try with another curve for further. अभी सेम क्वेश्चन इसके किसी बच्चे ने पूछा था, उसका जवाब अभी हमने दिया है। सेम क्वेश्चन पूछा था, ठीक। तो वो आप अगर नहीं सुन रहे हो तो फिर उसमें पढ़ो, रिकॉर्डिंग में सुन लेना। मैम फिर कभी लिमिट निकालने का क्वेश्चन हो और एग्जिस्ट भी कर रही हो तो निकालेंगे कैसे? मतलब एप्सिलॉन और डेल्टा मेथड से वैल्यू पता हो हाँ, हमें जब भी निकाल सकते हैं, तो कभी निकालने का क्वेश्चन हो तो निकालने का क्वेश्चन हो तो जैसे करते आए हो वैसे ही करोगे। लिमिट रखोगे एज एक्स वाई टेंड्स टू 2 1, मान लो 0 0 है तो 0 लिमिट रख के और निकालोगे। x की लिमिट 0 रखोगे, y की लिमिट 0 रखोगे और निकालोगे। जैसे निकालने का क्वेश्चन जैसे होता है वैसे ही करोगे, ठीक। पर हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे तुम्हारे कोर्स में आइदर टू शो दैट द लिमिट एग्जिस्ट। मान लो इस पे दी भी रहती कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मान लो ये वाला क्वेश्चन था जो इसके पहले वाला जिसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, इस पे ये ना दिया होता कि इसकी लिमिट 3 है, ये नहीं दिया है कि इसकी लिमिट 3 है, बस खाली इतना पूछा है शो दैट द लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 1 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2y एग्जिस्ट, यू हैव टू शो दिस, ठीक। तो आप लिमिट तो निकाल लोगे, x इज इक्वल टू 1 रखो, y इज इक्वल टू 1 रखो, लिमिट आएगी 3, बट उसका जो एग्जिस्टेंस है कि ये लिमिट 3 है भी कि नहीं है, ये जो वैल्यू हमने निकाली है ये सही है भी कि नहीं है, तो वो आपको एप्सिलॉन डेल्टा मेथड से दिखाना पड़ेगा, ठीक। यहाँ तक करके नहीं छोड़ सकते हो। क्लियर? क्लियर हो गया। चलो, नाउ कमिंग टू कंटिन्यूटी। Ma'am, then if we are not told beforehand that a finite value exists for the limit which we have to prove, then individually we can never prove that it exists finitely because there are an infinite number of curves. बिल्कुल कर लोगे, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आप सॉल्व कर रहे हो उनके नंबर्स बढ़ाओ बस। तो जैसे आप नंबर ऑफ क्वेश्चन जैसे 10 15 20 30 40 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस आने लगेगा और क्वेश्चन देख के बताने लगोगे कि इसकी तो लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही है, इसकी एग्जिस्ट करेगी, ठीक। Okay. तो अभी हमने सिर्फ 2 क्वेश्चंस कराए हैं, बाकी क्वेश्चंस आपको लिमिट एग्जिस्टेंस के खुद से करने हैं बुक से। असाइनमेंट भी हम शेयर कर देंगे, पर उसके अलावा भी क्वेश्चंस बुक से पढ़ो और सॉल्व करो खुद से। मैम नाउ कमिंग, हाँ मैम थ्योरम वाला चैप्टर एच के दास में नहीं है क्या? थ्योरम वाला चैप्टर? कौन सा थ्योरम वाला चैप्टर? मैम जो आप चैप्टर पढ़ा रही है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम। यस है उसमें है। मैम जो ये आप पढ़ा रही हैं ये पार्शियल डिफरेंशिएशन में है ना? नहीं, फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स में मिलेगा। एच के दास में तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन में दिया है ये सब। नहीं, फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स होगा उस बुक में नहीं है चैप्टर। मैम, चैप्टर नाम से नहीं है एच के दास में। तो पीछे इंडेक्स दिया रहता है ना, जब आगे से ना मिले तो पीछे इंडेक्स दिया रहता है, उसमें खोज लिया करो, जैसे कंटिन्यूटी है, लिमिट है। दिया है, पार्शियल डिफरेंशिएशन में दिया है, पार्शियल डिफरेंशिएशन में दिया मैम। ठीक है, तो कहीं दिया हो तुम्हें मिल जाना चाहिए बस।
जैसे लिमिट दिया हुआ है तो लिमिट में बहुत सारे पेज नंबर लिखे होंगे, तो अब उसमें हर पेज नंबर पे खोज खोज के देख लो कि सिंगल वेरिएबल पे कौन सा लिमिट है और 2 वेरिएबल पे लिमिट की डेफिनेशन दी है कि नहीं दी है, दी होगी। मीन वैल्यू थ्योरम भी मिलेगी, रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम, इस तरह से पीछे इंडेक्स में चेक करो। Okay, now coming to the definition of continuity. A function z is equal to fxy is said to be continuous at a point x0 y0 if पहला जो सिंगल वेरिएबल में डेफिनेशन थी सेम कैरी फॉरवर्ड होगी डबल वेरिएबल में, एंड सिमिलरली 3 वेरिएबल्स में एंड n वेरिएबल्स में। पहला fxy is defined at x0 y0. So first the function should be defined at that point. Second is its limit should exist. So limit xy tends to x0 y0 fxy, this exists. And the third is the value of the limit should be equal to the value of the function at that point. So limit xy tends to x0 y0 fxy, this should be equal to the value of the function at that point. Take. Now you transform this in the epsilon delta definition. So what is the equivalent definition of axiom number 3? क्या होगा? Or for every epsilon positive there exists delta positive depending upon epsilon such that mod of fxy, now the limit is f of x0 y0, so this will be f of x0 y0, this is less than epsilon whenever x minus x0 whole square plus y minus y0 whole square is less than delta. ठीक, now we have defined continuity at a point. Now if the function is continuous at each and every point of the domain, then we say that the function is continuous in that particular domain. So write if the function fxy is continuous at every point in a domain D, then it is continuous in D. दूसरा पॉइंट, अगर मान लो कि axiom 1 and 2 are satisfied but axiom 3 is not satisfied, that is the function is defined at x0 y0 and its limit exists but the limit is not equal to the value of the function, then in that case we say
that by redefining the function in such a way that the limit of the function at that point becomes the value of the value of the function at that point. We'll redefine the function and such that axiom number 3 is satisfied. In such case, the discontinuity at 0, x0, y0 will be removed. Suppose axiom number 1 is satisfied, 2 is satisfied, and 3 is not satisfied. Suppose this limit is equal to L and this value is equal to L1. Suppose. Then we'll redefine fx such that f of x0, y0, this is equal to L. In the domain D. Now, in the new function, the limit of the function becomes equal to the value of the function at that point. So we can remove the discontinuity. So such type of discontinuity such that equation number 1 and 2 are satisfied but 3 is not satisfied is called a removable discontinuity, because we can remove this discontinuity by redefining the function. क्लियर हुआ? अब इसी को लिख लेते हैं. Yes. So you write, if fx0, y0 is defined and limit xy tending to x0, y0, fxy is equal to capital L exist, but L is not equal to f of x0, y0. Then the point x0, y0 is called point of removable discontinuity. We can redefine the function at the point x0, y0 as f of x0, y0 is equal to L. So we redefine the function at the point x0, y0 is equal to the value of the limit, so that the new function becomes continuous at the point x0, y0. तो इस पे क्वेश्चंस देखे जाए. Yes, ma'am. Now check the continuity of the function at 0, 0. 0, 0 पे हमें चेक करनी है फंक्शन क्या दिया हुआ है. fxy is equal to 2x की पावर 4 plus 3y की पावर 4 upon x square plus y square when xy is not equal to 0, 0 and this is equal to 0 when xy is equal to 0, 0.
ठीक, so we have to check, so we will use the epsilon delta definition. तो epsilon delta definition में हमें क्या करना है, mod of fxy minus f of 0 0 निकालना है, कंटिन्यूटी चेक करने में. ठीक, so this value should be less than epsilon and we have to find the value of delta which depends upon epsilon. तो ये वैल्यू क्या आएगी, this is equal to mod of 2x की पावर 4 प्लस 3y की पावर 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 0. Now you put x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. तो हमारा क्या मिला, mod of fxy minus f of 0 0 this is equal to r की पावर 4, ऊपर क्या बचा 2 cos की पावर 4 थीटा प्लस 3 sin की पावर 4 थीटा अपॉन नीचे, इसको पुट क्यों किया हमने? बिकॉज यहाँ से तो हमें कोई वैल्यू मिलती दिख नहीं रही है. इसको लेस देन एप्सिलॉन करोगे तो हमें एप्सिलॉन और डेल्टा की वैल्यू कुछ चाहिए ना, तो कुछ मिलती दिख नहीं रही है, या तो अगर कर मतलब हमें नहीं मिलती दिख रही है. x पावर 4 y पावर 4 को x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के टर्म में कैसे लिखोगे? तो इसीलिए उसको इजी बनाने के लिए किया गया है. Now this is cos square theta plus sin square theta. तो अब क्या मिला हमें, नीचे डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा, r स्क्वायर कैंसिल हुआ तो हमें क्या मिला, दिस इज लेस देन r स्क्वायर और अंदर क्या बचा 2 टाइम्स mod of cos 4 theta plus 3 Yes. times mod of sin 4 sin theta. 4. ये मिला. Ma'am. Now mod of cos 4 theta, this is always less than 1, and similarly mod of sin 4 theta, this will be less than 1. ठीक, so this is less than 5 r square. Now if we take this is less than epsilon, then the value of r should be less than epsilon by 5 under root. Now what is the value of r in our case? r की वैल्यू क्या होगी, और वैल्यू ऑफ r क्या होगी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दिस इज लेस देन epsilon by 5 का अंडर रूट. ठीक, सो यही हमें x टेंस टू 0 एंड y टेंस टू 0 पे क्या था, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर का अंडर रूट शुड बी लेस देन डेल्टा. So you choose delta less than epsilon by 5. ठीक, so if we choose delta less than epsilon by 5 का अंडर रूट, then mod of fxy minus f of 0 0, this is less than epsilon whenever this x square plus y square is less than delta. ठीक, this is the value of delta.
and of course this will be positive. Because you are measuring the distance. Clear है? मैम आपने cos 4 थीटा और sin 4 थीटा को साथ में 1 कैसे ले लिया, मतलब मैक्सिमम वो तो डिपेंडेंट है ना, क्या मतलब डिपेंडेंट है? मैम आपने ऊपर जो ये आपने 2 mod cos 4 थीटा और इसको आपने मतलब 5 r स्क्वायर लिख दिया है, पर ये तो तब होगा जब cos 4 भी 1 हो और sin 4 भी 1 हो, मतलब नहीं, इसकी वैल्यू लेस देन 1 तो होगी ना। अच्छा हाँ मॉड ठीक की है, वैल्यू लेस देन तो 1 होगी ना हमेशा। हाँ हाँ ठीक है मैम। वहां से ले लिया है। तो मैम इससे ये समझ आता है कि ये कंटिन्यूअस है। हाँ और क्या, इससे मैम हमने लेकिन जो सेकंड एप्सिलॉन वाली चूज किया तो डेल्टा मिल गया ना। मैम लेकिन जो Such सेकंड वाली that this कंडीशन है कि f ऑफ एक्स वाई लिमिट f ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट करनी चाहिए तो एग्जिस्ट करी ना। मैम, और लेकिन जब एफ आपने ऑफ बोला था 0 0 पिछले क्या क्वेश्चन है? में नहीं, एफ ऑफ 0 0 f क्या है? 0 वो है। 0 है। 0 है, सो लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट 0 है एंड इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। मैम वो तो 0 पॉइंट मतलब 0 0 पे 0 है ना वैल्यू, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट से इससे थोड़ी ना प्रूव कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? एप्सिलॉन मैम डेल्टा ही उसके से तो साइड करेंगे। में उसके x प्लस और y प्लस पे भी तो देखना पड़ेगा ना। नहीं बेटा, अब तुम मतलब उसमें जो नहीं हो। अपन ने पिछला नहीं, अब आप रियल लाइन पे नहीं हो, अब ऐसे नहीं हो। तो आपके पास, हम पहले भी बोल चुके हैं कि आर में आपके पास 2 ही रास्ते हैं यहाँ पे आने पे। एक आप लेफ्ट हैंड साइड से आ सकते हो, एक आप राइट हैंड साइड से आ सकते हो। तो वो x माइनस और x प्लस जो आप देखते हो, पर यहाँ पे तो बहुत सारे पाथ है ना। बहुत मतलब सारे मेरा पाथ्स कहने है। का मतलब था कि पिछला जो क्वेश्चन हमने किया था y इक्वल्स टू mx पुट कर दिया था, वो हमने नॉट एग्जिस्टिंग लिमिट के लिए एग्जिस्टेंसी। दिखाया था, नॉट हाँ एग्जिस्टेंस के लिए। तो इसमें अगर ये करेंगे तो तब भी तो एग्जिस्टेंस नॉट एग्जिस्ट ही नहीं, आएगा। इसमें नहीं नहीं नहीं, कैसे आएगा नॉट एग्जिस्ट? m पे डिपेंड करेगा ना, और x पे भी डिपेंड कर रहा है वैसे, लेकिन तब फिर x पे डिपेंड कर रहा है तो फिर m खाली m पे कैसे डिपेंड करेगा? लिमिट लोगे तो 0 ही आ जाएगी ना। यस मैम 0 आ जाएगा। तब फिर वो मेथड सिर्फ नॉट एग्जिस्टेंस के लिए है, एग्जिस्टेंस के लिए नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखें। शो दैट क्लास है मैम। क्लास तो 9 बजे से है ना, एक और देख लेते हैं जल्दी से। इज इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अभी आपका जो डाउट है वो इसमें क्लियर हो जाएगा। इज नॉट इक्वल टू 0 0 and this is equal to 0 when xy is not equal to xy is equal to 0 0. ठीक, so now we have to prove that this is discontinuous at 0 0. तो डिसकंटिन्यूअस के लिए अब आप y is equal to mx ले सकते हो। ठीक, because we have to check the discontinuity at 0 0, so take our path passing through 0 0. So you choose path dependent. Choose path y is equal to mx. So limit निकालो, xy tends to 0 0, fxy क्या आ जाएगी? 1 minus m upon 1 plus m. So this is path dependent. हाँ, यहाँ पे x और y के टर्म नहीं आ रहे हैं। अगर x आ जाता, इंटू x आ जाता तो लिमिट लेते 0 आ जाता, तब कुछ नहीं कह सकते थे। So this is path dependent. So therefore it does not exist. तो लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो फंक्शन कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, बिकॉज हमारा एक्सियम नंबर 2 फेल कर गया। ठीक, अब अगर मान लो
अगर मान लो एग्जाम नंबर 3 फेल कर जाए, जैसे एक ये क्वेश्चन देख ले, लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 2 ये हमें निकालनी है, और फंक्शन दिया हुआ है लिमिट एफ एक्स वाई, ठीक, और फंक्शन एफ एक्स वाई दिया हुआ है फंक्शन एफ एक्स वाई इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, and this is for when xy is not equal to 2 and this is when xy is equal to 2 मान लो ये फंक्शन दिया है, तो जब हम लिमिट निकालेंगे एज एक्स वाई टेंस टू 2 रखो, इसमें 2 दोनों रखो, क्या आएगा, क्या आया, 3 आया, and 3 is not equal to the value of the function at that point. So this function is discontinuous, but this यहाँ पे लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, बट ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर नहीं है, तो दिस इज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। हम फंक्शन को रीडिफाइन कर सकते हैं, तो अगर हम फंक्शन को ऐसे डिफाइन कर दें एफ एक्स वाई इज इक्वल टू वो ऊपर वाला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई when xy is not equal to 2 and this is equal to 3 when xy equal to 2। तो अब ये जो फंक्शन होगा दिस इज कंटिन्यूअस, ठीक, सो दिस इज कंटिन्यूअस एंड दिस इज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू मैम। You can leave for your next class. थैंक यू मैम। मैम जब ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी आएगी तो लिमिट दूसरी बता रहेगी, तो एप्सिलॉन डेल्टा मेथड से वापस रीचेक करके नहीं बताना है? हाँ चेक तो करना है, पर हमने शॉर्ट में बता दिया है। ठीक है मैम। कैन वी लीव? हेलो, थैंक यू मैम। बोल रहे थे कि थैंक यू मैम। क्लास नहीं ले पाए क्योंकि मतलब MS टीम का पासवर्ड भूल गए थे, तो मैम जो पिछले वाला असाइनमेंट भेजना था वही मैं नहीं भेज पाया हूँ, तो फिर वो कैसे भेजूं मैम से? अब आज तक मेरे ख्याल से एक दिन लेट भी वो ले लेता है, उसके बाद तो नहीं लेगा। तो आज का समय और तुम्हारे पास है, आज अपलोड कर दो तो कर दो, नहीं तो फिर तो मैम आप ऐड कर दो कि मतलब जो आप मतलब ऐड वो दिखाई नहीं रहा, ऑप्शन ही नहीं आ रहा है कोई सबमिट करने का। मैम क्लोज हो गया तुम होगा। कौन से ग्रुप के हो? I1 ग्रुप। हाँ तो I1 ग्रुप वाला में तुम एडेड हो तो तुम्हें दिखाएगा ऑप्शन, नहीं एक दिन लेट अलाउड है जहां तक उसमें। यस मैम, B1 में ले रहा है। मैम एक दिन लेट अलाउड है। हो सकता है कि मतलब हम ऐड नहीं हुए, एक बार फिर से आप दोबारा ऐड कर दीजिए। उसमें क्या नाम है तुम्हारा? तुम I1 ग्रुप का अगर खोल के देखे ले रहे हो तो इसका मतलब तुम एडेड हो। मैम उसमें अटैच करके फाइल उसके बाद टर्निंग कर। असाइनमेंट भी नहीं दिखा रहा है उसमें, कोई कुछ नहीं दिखा रहा है। नहीं असाइनमेंट नहीं दिखा रहा है तो वो तुम्हारे बच्चों ने तरीका बताया था, क्या तरीका है वो उन्हीं लोगों से पूछ लो, कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो तो दिखाने माइक्रोसॉफ्ट लगेगा। शेयर डाउनलोड करके कर सकते। हाँ तो माइक्रोसॉफ्ट शेयर डाउनलोड करो, और इतने दिनों से अभी तो एक यूनिट पूरी कंप्लीट होने को आ गई और तुम अभी तक क्लास ही नहीं करे हो, तो उसमें अगर असाइनमेंट नहीं दे पाए हो तो नहीं दे पाए हो, ठीक है, उसके नंबर कट जाएंगे, बस आगे वाले देना। अभी तक क्यों सो रहे थे, क्लास नहीं कर रहे थे? नहीं मैम क्लास कर रहे थे, इधर 3-4 दिन से पासवर्ड भूल गए थे तो मतलब नहीं ले पा रहे थे। 3-4 दिन की तो बात ही नहीं है ना, 10 दिन का समय दिया गया असाइनमेंट सबमिट करने के लिए। 3-4 दिन से तुमको याद आया कि असाइनमेंट सबमिट करना है। उधर कंप्लीट कर रहे थे मैम, तो मतलब कंप्लीट हो गया था। नहीं तो ये प्रॉब्लम सबमिशन के बाद ये बहाना नहीं काम करेगा।
ये बहाना तुम मैम पहले पूछते तो उसका हम रास्ता बता देते, पर अब जब टाइम निकल मैम गया तब कोई रास्ता नहीं है। और नहीं दिखा रहा है तो उसको वहां पे चेक करो, जैसा रास्ता तुम्हारे साथी बता रहे हैं वैसा करो। अगर सबमिट हो पा रहा है तो करो, नहीं हो पा रहा है तो फिर छूट गया ये असाइनमेंट बस। मैम मैम मैंने आपको रात को मैसेज किया था, मैं तो टाइम लिमिट से पहले सबमिट कर था, बट मेरा ले ही नहीं रहा है। तुम बहुत ज्यादा हाँ तो तुम्हारा नहीं ले रहा था तो तुमको हमने रास्ता बताया था। पर मैम ऐसा करो, पर हाँ मैम आप आज भी कोशिश करके, आपने भेज दिया है ठीक है, आपका विद इन टाइम लिमिट है, लेकिन एक बार कोशिश करके, क्योंकि लास्ट में फिर हम हालांकि वेरीफाई कराते हैं स्टूडेंट से, क्योंकि लास्ट में मान लो हमको ना याद रहा ईमेल पे तुमने भेजा है कि नहीं, क्योंकि मेनली MS टीम पे ही देख लेते हैं कि किसने भेजा है किसने नहीं भेजा है। तो एक बार कोशिश करके वहां पे भी अटैच कर दो। मैम जो ट्राई कर रहे हैं लेट बट हो सबमिशन, नहीं। फाइल आज भी थोड़ी और सुबह में छोटी ट्राई कर, किया मैम। तो ऐसा करो ना, फाइल को थोड़ा छोटा कर दो, कुछ क्वेश्चंस मैम हटा मैम दो कोई और ATM वहां भी पे कर एक नोट डाल दो, वहां पे एक हाँ नोट डाल दो कि रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई हैव सबमिटेड ऑन ईमेल विद इन टाइम लिमिट। तो फाइल को अच्छा छोटी करके और ये नोट डाल एक के, नोट डाल दे उसमें, है ना मैम? हाँ नोट डाल दो कि कुछ एक नोट ही डाल दो कि आई हैव सबमिटेड दिस असाइनमेंट ऑन योर ईमेल, ऐसा करके और उसको सबमिटेड कर दो विद इन टाइम लिमिट। मतलब ठीक कुछ ऐसा वहां पे रहे कि हमें याद रहे कि हमें ईमेल चेक करना है। अच्छा ठीक ठीक मैम, ठीक मैम, थैंक यू मैम। हम्म। चलो मैम लीव लीव कर कर दो। दो। हाँ हाँ लीव कर दो, ये हम भेज देंगे। थैंक यू मैम।